Mrs. Nighat, wife of Mr. Fazaldeen, 72 years of age, housewife with no formal education, resident of Kot Lakhpat, 1 hour distance from the Index Hospital, married for 50 years, para two with previous two cesarean section, and last child born is 31-year back. She is menopausal for the last 31 years, admitted to outpatient department of Index Hospital 2 days back on 16 November 2021 with complaint of postmenopausal spotting for the last 5 to 6 months. My patient is a non-hypertensive for the last 10 years and is taking an antihypertensive, the name of which she don't know. Her blood pressure is controlled according to the patient. She is compliant patient and has a good follow-up. She was in usual state of health. She is menopausal for the last 30 years and she was in usual state of health 5 months back when she has a complaint of postmenopausal spotting, which was sudden in onset, 7 to 8 episodes, fresh red in color, and she has not used to pad for it, and this is and she did not took medication for it. It is not preceded by any trauma, coitus, or HRT intake, or any history of pessary insertion. There is a no history of blood thinning drug. This is the There is a no history of mass abdomen or mass coming out of vagina, any history of weight loss, loss of appetite, or right upper quadrant pain, jaundice, no history of abnormal vaginal discharge, lower abdominal pain, urinary urgency, frequency, burning micturition. This is the first marriage of both partners living together since marriage with no marital conflicts, with no history of multiple sectional partners of both partners, or any HPV vaccination, or any prenatal lesion, or pap smear was never taken, and she is para 2. And For this complaint, my patient came to the Index Hospital where she was admitted. Her blood and urine tests were done. Ultrasound has been done, and further plan of management has been discussed with the patient. Menax started at the age of 40 years, regular cycle, used to bleed for every 2 days after 3 days after every 20 soaking 2 to 3 partially soaked pad per day with no history of dyspareunia, inter or postcoital bleeding. Couple never practiced contraception and past never was never, and she is sexually active. There is she is para 2 with two cesarean section, and her last cesarean section was due to the placenta previa, and with no antenatal, postpartum, and postpartum complication. She has only one baby, male son, and her daughter died at the age of 10 years due to accident. There is no history of ischemic heart disease, asthma, tuberculosis in the patient and in her family. No family history of breast, colorectal, ovarian, endometrial cancer. Surgical history has already been described, and no other significant surgical history. She is non-smoker, non-addict, has normal sleep and bowel habits with no drug allergy. Um, she is dependent on her sons, and basic income is 20,000 per month, and basic necessities of life are met with difficulty. A old lady, well-oriented, time, place, and person, answering my question intelligently, with weight 75 kilogram and height 5 foot 3 inches, making her BMI of 29 kilogram per meter square, with pulse 86 beats per minute, regular good volume, blood pressure 160/90 millimeter of mercury, temperature 98 Fahrenheit, and respiratory rate 16 per minute. There is no pallor, cyanosis, jaundice, chylonychia, clubbing, thyroid is not enlarged, accessible lymph node not palpable, no gross spinal deformity, no sacral and pedal edema, no lump palpable in four quadrants of both breasts. First and second heart sounds are audible with no added sound, normal vesicular breathing with no added sound. On inspection, abdomen is
Flabby moving symmetrically with respiration with fenestrated scar mark of previous cesarean section but no visible vein pulsation. Near orifices are intact. On palpation, abdomen is soft and 18-week size mass occupying the hypogastrium. Firm in consistency with ill-defined margins, smooth surface, and restricted mobility, and low limit is not reachable. Percussion note is dull on the mass and resonant in the flanks. No viscomegaly. On vaginal examination, vulva is normal looking with इसकी normal लोकेशन hair. आपने क्या बताई थी एग्जैक्टली? लोकेशन एंड Madam, कंसिस्टेंसी. location it is located in the hypogastrium ठीक है, and firm in consistency ठीक with है. ill-defined margins, smooth हम्म. surface, restricted mobility, and low limit is not reachable. On vaginal examination, vulva is normal looking with normal hair distribution with no discharge or bleeding coming out from the introitus. On speculum examination, cervix is normal looking and with no discharge or bleeding. On vaginal, on bimanual examination, a mass 18-week size mass of above mentioned dimension not well separated from the uterus and there is a fullness in both fornices. ठीक है. So you were not able to appreciate any mass in the fornices. सिर्फ fullness आपको नोट हुई. जी मैडम. अच्छा, ठीक है. बस खत्म हो गया आपका. ये अब समराइज इसको करें. 72 years, para 2 with previous 2 cesarean section and menopause for the last 30 years with postmenopausal bleeding for postmenopausal spotting for 5 months. She is hypertensive. On abdominal examination, 18-week size mass in the hypogastrium. Firm in consistency, ill-defined margins, smooth surface, mobile and restricted mobility and low limit is not reachable. And on by manual examination, a mass of above mentioned dimension not well separated from the uterus and fullness in both fornices. ठीक है. इसमें पेशेंट ने कोई नोटिस नहीं किया कि मैस, ऐसा ही आपने बताया था ना? जी मैडम. क्योंकि 18 वीक साइज मैस, पेशेंट का बीएमआई भी ज्यादा है प्रोबेबली, इस वजह से क्या आपने जी पेशेंट मैडम, patient has not history of feeling of mass in abdomen. आपने उससे ये स्पेसिफिकली पूछा था? जी मैडम. अच्छा, चलो ठीक है. इसमें अब आपका डायग्नोसिस क्या है? Madam, based on history examination, my first differential diagnosis is Madam, fibroid uterus. As the mass is not well separated from the uterus. And my second differential is ovarian mass, which may be malignant. And third differential is non-gynecological mass. Non-gynecological आपने किस बेस पे डिफरेंशियल में इंक्लूड किया? Just to complete the list और आपको कोई suspicion थी for the origin of this mass? No, madam, just to complete the list and it is less likely. तो सिर्फ लिस्ट को कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता. ये जो हमारा एक मिथ है कि डिफरेंशियल में कोई 2-4 डायग्नोसिस जरूर शामिल हों, वो गलत है. उसमें फिर आप लोग वो भी चीजें डाल देते हो जिसकी कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं होती. तो इसमें जो ज्यादा प्रोबेबल आपको लगता है वो डेफिनेटली फाइब्रॉइड वुड बी ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट एंड देन द ओवेरियन मैस. बस ये दो आपके डिफरेंशियल में काफी हैं. उसमें नॉन गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर्स अगर आपको किसी तरीके से लगें या आपको पेल्विक फाइंडिंग्स पे कोई प्रॉपरली इसको नहीं पता चल रहा, फिर आप उसको कर सकते हो, नॉट अदरवाइज. फिर आप उसको लिस्ट को कंप्लीट ना करें. जी मैडम. अब आप इसकी अब इसमें जो फाइब्रोइड यूट्रस के है, बेसिकली यू कैन बी आस्क्ड फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ योर डायग्नोसिस के फाइब्रोइड यूट्रस के फेवरिंग पॉइंट्स क्या हैं या ओवेरियन मैसिस के फेवरिंग पॉइंट क्या हैं इस पेशेंट पे. इसका डायग्नोसिस आपने क्लिनिकली जो बनाया वो किन पॉइंट्स के बेस पे बनाया? Madam, as my patient has a history of postmenopausal bleeding, and maybe it may be any submucosal fibroid,
and I have felt 18-week size mass, which is firm and not felt separated from the uterus. So, based on these points, I made the differential diagnosis of fibroid uterus. And madam, as on the as the mass is, I have felt fullness in both fornices and mass in the pelvis, and the patient is postmenopausal. So फुलनेस वाली चीज तो इसकी जस्टिफिकेशन में नहीं आएगी, वो इसलिए कि एनी मैस बियॉन्ड 18 वीक्स या बल्कि 16 वीक्स के बाद ही बेसिकली यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट टू फील फॉर द एडनेक्सा, तो उसमें आप फुलनेस की बात नहीं करते, उसमें 18 वीक मैस के साइज के साथ आप ये कह दो कि आई कुड नॉट फील एनी टिपिकल मैस इन द एडनेक्सा, क्योंकि फुलनेस का मतलब है कि देयर इज समथिंग इन द एडनेक्सा, क्योंकि आप क्लियरली उसको फील नहीं कर पा रहे होते एडनेक्सा को विद दिस मच साइज ऑफ द पेल्विक मैस, क्योंकि 16 वीक्स का मतलब ये है कि नाउ इट्स आउट ऑफ पेल्विस और उसको वो तकरीबन पेल्विक साइड वॉल्स की तरफ वो मैस जा रहा होता है, तो आप उसको बाय मैनुअली जो है वो उसको बहुत ज्यादा फिर क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है जी मैडम। क्योंकि फुलनेस के साथ में फिर थोड़ी सी जरा सस्पिशन आ जाती है कि प्रोबेबली देयर इज एन एडनेक्सल मैस एज वेल। अभी तो आपने सिर्फ इसको सेंटर ऑफ द पेल्विस में डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन, हाइपोगैस्ट्रियम इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सेंटर में वो मैस है, ठीक है जी मैडम। अच्छा, और ओवेरियन की फेवर में क्या चाहता, एनी पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ओवेरियन मैस या नहीं? मैडम, patient is postmenopausal and मैडम जो फुलनेस है बोथ फॉर्नेसेस में वो अभी एप्रिशिएट मुझे मतलब मुझे मेरा सस्पिशन फुलनेस की वजह से हो रहा है कि ओवेरियन हो सकता है मैस बोथ फॉर्नेसेस में। फुलनेस को देखो, फुलनेस को फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको क्योंकि बीएमआई इसका 29 है, 72 केजी अगर उसका वेट है, बीएमआई इसका 29, तो उसमें थोड़ी सी आपको अगर खास तौर पे एब्डोमिनल वॉल उसकी वो है फैट ज्यादा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा इसकी एडनेक्सल मैसेज की अप्रिसिएशन में डिफिकल्टी हो सकती है, एंड दैट इज क्वाइट नेचुरल, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मच मैस इन द सेंटर ऑफ द पेल्विस it is a little bit difficult to exactly comment on the size or presence of that adnexal mass. तो अगर तो आपको कंफ्यूजन है इसमें या आप बहुत क्लियरली इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैस था या नहीं था, तो उसको इसी तरह से ये आप बताओ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मच साइज ऑफ सेंट्रल मैस, सेंट्रल पेल्विक मैस, I cannot appreciate exactly the adnexal mass, कि उसका साइज है, वो मैस है या नहीं है, या साइज क्या है उसका, फिर आप क्लियरली आप बता नहीं सकते, फिर उसको आप उसको उसी तरह से आपने यही कंफ्यूजन अपनी कन्वे भी करनी है, एंड दैट इज क्वाइट नेचुरल विद दिस मच साइज ऑफ द यूट्राइन मैस, अगर ये यूट्राइन है तो उसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाता, क्योंकि यूजुअली जो एग्जामिनर्स हैं वो खुद भी इसको रीचेक कर रहे होते हैं, तो सपोज जाहिर है उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, आपका एक अपना एक्सपीरियंस है, मे बी दे आर एबल टू फील फॉर अ मैस एंड मे बी दे आर नॉट एबल टू फील अ मैस, तो उसमें फिर ये बीच वाली जो है आपको करना, स्टेटमेंट देना ज्यादा सेफ ऑप्शन हो जाती है, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन कन्वे कर दें कि आई एम नॉट एबल टू मेक आउट द प्रेजेंस एंड साइज ऑफ द मैस एग्जैक्टली, ठीक है? ओके मैडम। जी मैडम। ठीक है, तो ये इस वजह से आप कह सकते हो कि ओवेरियन समटाइम्स ओवेरियन मैसेज आर इनसेपरेबल फ्रॉम द यूट्रस, और दूसरी ये कि एज फेवर्स द ओवेरियन मेलिग्नेंसी जो है इस एज पे ज्यादा होती है, तो उसकी एज और बाद दफा जो सॉलिड ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं वो भी उसमें उनको अप्रिशिएट करना मुश्किल होता है, एंड मोर ओवर यू हैव अ फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ एडनेक्सा, तो ये तीन चीजें हैं जो उसके फेवर में जाएंगी, बट ज्यादा जो इसमें क्लिनिकली जो अभी तक जो आपने बताई पिक्चर, उसमें तो फाइब्रोइड यूट्रस का ही ज्यादा डायग्नोसिस बन रहा है। नाउ हाउ यू विल एवेलुएट दिस मैस, या इसमें इसकी पेशेंट को एवेलुएट कैसे करोगे?
This was जी a मैम। clinical diagnosis based on history and examination. जी मैडम, I will do her baseline investigation in which blood group with RH factor, which was B positive, her complete blood count with date, in which hemoglobin in gram per deciliter, which was 12 gram per deciliter, total leukocyte count and platelet count, which were platelets were 240 and leukocyte count was 11. Her hepatitis B surface antigen or anti-HCV antibodies which were negative. Her BP record, madam, only 2 readings were there, and one BP was 140/90, and when I checked, it was 160/90. And her liver function test and renal function test, which was not available. Her random blood sugar, which was 92 gram per deciliter. Her her abdominopelvic ultrasound for the origin of the mass and size of the uterus, endometrial thickness, and adnexal pathology, and presence of any mets, and liver echo texture, and presence of ascites. लेकिन एसाइटिस को और बाकी जो आपने जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपने एसाइटिस को देखा, या आपको क्या लगा एसाइटिस है या नहीं है? No, madam, I can't felt ascites on clinical examination. How you demonstrated it? Madam, I first of all I do the percussion of the mass, and then I percuss it into the flanks, and in the flanks it was flanks were resonant, so so I did not. ठीक है, this is enough information to tell you that frank ascites is not present. लेकिन अगर small amount of fluid है तो वो usually इससे appreciate नहीं होगा, तो उसके लिए फिर आपको अल्ट्रासाउंड की हेल्प की जरूरत है। तो लेकिन based on the history, do you think she is a case of some malignant tumor? जो आपने मेटास्टेसिस के लिए ये सारा कुछ जो आपने एज एन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टडी किया? जी मैडम, मैडम on history there was no history of malignancy. There was no history of weight loss, loss of appetite, or any symptoms of metastasis. And on a vaginal examination, I have already told, but madam, I will evaluate it on the ultrasound and then further CT scan. CT scan आप as a baseline investigation करवाओगे और after getting an ultrasound report? Madam, after getting ultrasound report, I will do CT. अब यहाँ पे हम इसको जो है वो उसको अब लेके चलते हैं अल्ट्रासाउंड की पिक्चर के मुताबिक। अल्ट्रासाउंड पे क्या इसकी फाइंडिंग्स थी? मैडम, अल्ट्रासाउंड पे था एट्रोफिक यूट्रस 11.5 into 10.5 centimeter large cystic area with thick debrinous content seen extending into the cul-de-sacs with indistinct margins and no ascites and no lymph node. और यूट्रस जो एट्रोफिक इन साइज है, इज इट बेसिकली, अब यहाँ पे आपके थोड़ा सा क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी सवाल उठ सकता है कि वर यू एबल टू फील एनी सेपरेटिंग पॉइंट बिटवीन द यूट्रस? यूट्रस एट्रोफिक है मे बी। अब इसमें जो आप एक चीज बता सकते हो ना जस्टिफिकेशन में कि एज द यूट्रस इज वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि 30 इयर्स हो गए इसके मेनोपॉज को, तो उसमें यूट्रस तो एट्रोफी हो जाएगी, लेकिन यूट्रस एट्रोफिक है इस वजह से यू आर नॉट एबल टू फील इट सेपरेटली फ्रॉम द मैस। ठीक है जी मैडम। तो इस वजह से बाद दफा जब यूट्रस स्मॉल इन साइज हो तो आप उसको सेपरेटली उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन अमूमन जो सर्विक्स की डायरेक्शन या उसकी प्लेसमेंट है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंशियल की तरफ ले जाती है कि ये ओवेरियन है या वो, अगेन दैट इज जस्ट इज एन एस्टिमेशन। उसमें फाइनली आपके लिए कंक्लूड करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये यूट्राइन मैस है या ओवेरियन मैस है।
तो एनीवे इट इज वेल अंडरस्टूड के इसमें यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द यूट्राइन मैस एंड ओवेरियन मैस क्लिनिकली, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो उसमें डिफिकल्टी कर सकती हैं उस असेसमेंट में. So now this is an ovarian mass. What is your opinion about this ovarian mass based on its nature? Madam, on ultrasound there is a thick debrinous content. मैडम ये इसकी मुझे समझ नहीं आई कि ये सॉलिड कंपोनेंट्स को इंडिकेट कर रहा है या ये किस चीज को डेब्रिनस. देखो डेब्रिनस कंटेंट जो है वो एक टाइप ऑफ फ्लूइड भी उसमें हो सकता है, डीजेनरेटिंग टिश्यू भी उसके अंदर हो सकता है. ये सारी वो चीजें हैं जो कि डेब्रिनस अपीयरेंस देंगी ऑन अल्ट्रासाउंड. तो लेकिन अब ये 11.5 into 10.5 ये सारी जो अल्ट्रासाउंड फीचर्स हैं, अब इस आपका डायग्नोसिस अब आफ्टर गेटिंग दिस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वो अब क्या होगा? मैडम इट मे बी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप इस पे अल्ट्रासाउंड पे लोगे वो क्या होगी? मैडम मोस्ट प्रोबेबली इट इज एन malignant ovarian mass. नहीं, वो तो अल्ट्रासाउंड ने तो आपको ये सारी फीचर्स बता दी, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहोगे इस पे? मैडम प्रेजेंस ऑफ ब्लड फ्लो एंड चलो वो भी हो गया. और एंडोमेट्रियल थिकनेस. एंडोमेट्रियल थिकनेस जरूरी, क्योंकि वो ब्लीड कर रही है पेशेंट. दो यूट्रस इज एट्रोफिक इन साइज, लेकिन इसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस को आपने देखना है कि कितनी है इसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस. ठीक है, चलो अब आगे चलें. और व्हाट वाज द कमेंट ऑन ascites, ascitic fluid and on the contralateral ovary? Madam, there was no comment on contralateral ovary and ascites was absent. Okay. अब आपका वर्कअप यही रहेगा या इसमें कुछ चेंज हो जाएगा? Madam, then I will do her CA125 and then I will, Madam, it was 15.2 CA125. 15.2. ठीक है जी मैडम. अच्छा चलो, तो 15.2 CA125 की कोरिलेशन with this type of cyst as found on ultrasound, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? मैडम if I calculate RMI then it is 45 and there is 45. A moderate. कैसे 45 आपने कैसे निकाला? मैडम there is 3 menopausal status has 3 score and मैं अल्ट्रासाउंड फीचर्स पे सिर्फ एक उसने फीचर दिया है जो कि मुझे ये डेब्रिनस फ्लूइड के बारे में कंफ्यूजन है कि इसको फीचर इंक्लूड करना चाहिए. नहीं, देखो आप जरा दोबारा से रिपीट करो अपनी सारी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स. मैडम एट्रोफिक यूट्रस 11.5 into 10.5 centimeter large cystic area with thick debrinous content seen extending into the cul-de-sac with indistinct margins. ठीक है. And no ascites. No ascites, ठीक है. तो इसमें आपने जो इसको दिया है, जो मार्क्स दिए हैं इसको अल्ट्रासाउंड फीचर्स को, वो कितने दिए? देखो जो अल्ट्रासाउंड फीचर जिस पे हम उसको स्कोर करते हैं उसमें साइज नहीं आता. ठीक है, साइज अपनी इंडिविजुअल एंटिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसमें जो थिक डेब्रिनस फ्लूइड है वो अगरचे इसमें आपको कंफ्यूजन भी है और इसमें बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ, बट दैट विल स्कोर 1 एटलीस्ट. और उसमें जो है वो उसका जो एक्सटेंड कर रहा है कल्डी सैक में, वो भी उसमें एक पॉइंट आ जाएगा. सो बेसिकली इसको अगर आप स्कोर करो, अगर 1 भी स्कोर करो तो ये तकरीबन आपका आ जाता है 45. ठीक है, और उसमें सिस्टिक के साथ कोई सॉलिड एरियाज भी थे या बिल्कुल भी नहीं? नो मैडम, सिर्फ ये लिखा हुआ था लार्ज सिस्टिक एरियाज. 11.5 into 10.5 centimeter large cystic area.
ठीक है, और उसके साथ डेब्रिनस फ्लूइड है जो एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर चाहिए बहुत वेल डिफाइंड वो चीज नहीं है, तो जब एक आपको एक इंटरमीडिएट नेचर वाली जो चीज लग रही है, तो वुड यू गो फॉर फर्दर स्टडीज? जी मैडम, आई विल गो फॉर सीटी एब्डोमिनो पेल्विस क्योंकि टू सी देखो द ये जो है, ये इसकी जो सिस्ट की नेचर है उस पर बहुत क्लियरली कुछ चीजें डिफाइन नहीं है ऑन अल्ट्रासाउंड। तो जब आपको अल्ट्रासाउंड पे बहुत क्लियरली ये चीजें ना नजर आ रही हों, तो फिर आप फर्दर इमेजिंग स्टडीज पे जाते हैं, बिकॉज CA 1 to 5 इज नॉर्मल। CA 1 to 5 is not clearly indicative of malignancy. Madam, can we go for other tumor markers if the CA 1 to 5 is normal? देखो, अदर ट्यूमर मार्कर्स में आप क्या करवाओगे? हम रूटीन में तो नहीं करवा रहे होते, अनलेस इट्स अ ग्रॉसली इंक्रीज साइज ऑफ ओवेरियन ट्यूमर, जिसमें आप कंसिडरिंग इट टू बी अ म्यूसिनस इन नेचर, म्यूसिनस इन नेचर हो तो वो अल्ट्रासाउंड पे भी हमें पता चल जाता है, तो उस सूरत में हम CEA करवा सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो के बेस पे CEA बनता नहीं है। तो अब इस सूरत में आप फर्दर इमेजिंग स्टडीज पे जाओगे, बिकॉज ultrasound is not showing you, is not giving you clear picture of that ovarian mass. ठीक है, इसमें just to know the clearly the nature of this mass, आपने इसके दूसरी इमेजिंग स्टडीज पे जाना है। तो ऐसी सूरत में जो दूसरी इमेजिंग स्टडीज हैं, considering the radiation exposure and considering the sensitivity and specificity of that particular mass, आप इसमें कंट्रास्ट MRI करवाओगे, ठीक है, जिसमें आपको किसी हद तक मेटास्टेसिस का तो पता चल जाएगा, बट फर्स्ट थिंग इज टू नो, क्योंकि अगर ये मेटास्टेसिस वाली चीज होती CA 1 to 5 इतना कम ना होता, सिर्फ स्टेज 1 में ये कम हो सकता है अलोंग विद मेलिग्नेंसी या बॉर्डर लाइन मेलिग्नेंसी में भी, लेकिन स्टेज 1 में इसने मेटास्टेसिस भी नहीं होते। तो CT स्कैन अमूमन आपको मेटास्टेसिस की नेचर बताने के लिए ज्यादा कंफर्मेटरी होता है, लेकिन जब आपने इस टाइप ऑफ सिस्ट को एवेल्युएट करना है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड से हमें क्लियर पिक्चर उसकी पता नहीं चल रही, तो फिर आप उस सूरत में कंट्रास्ट MRI करवाओगे। सो बिफोर कंसिडरिंग एनी अदर थिंग एज रिगार्ड टू मैनेजमेंट, आप कंट्रास्ट MRI इसमें करवाना बनता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो एग्जामिनर आपको इस लेवल पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका अल्टीमेट आखिर मैनेजमेंट प्लान इसमें है क्या? तो अल्टीमेट मैनेजमेंट प्लान डेफिनेटली इज लेप्रोटमी कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस मैस, लेकिन हम अभी वी आर नॉट वेरी मच कंफर्मेटेड अबाउट द नेचर ऑफ दिस मैस। तो अब जब हमने, अब इसमें ये होगा कि जब आपने लेप्रोटमी करनी ही है, तो फिर इसमें MRI और बाकी सब चीजें करवाने की क्या जरूरत है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? ये अमूमन होता है अगर आप फर्दर स्टडीज की तरफ जाते हो ना, जैसे ये वाला जो आपने सारा ये मैथ्स दिया, जिसपे आपको सिर्फ एक दो उसका क्राइटेरिया मिलता है, जो बेसिकली बहुत ज्यादा वो क्लियर पिक्चर नहीं है उस मैथ्स की, तो उसमें आपने ये कहा कि इसकी मैथ्स की नेचर को जानने के लिए, मजीद इन डेप्थ डिटेल जानने के लिए, हम इसको जो है वो कंट्रास्ट MRI करवाएंगे। तो फिर उस सूरत में एग्जामिनर ये सवाल कर सकता है कि आपने जब इसकी करनी ही लेप्रोटमी है, तो फिर आप इसमें कंट्रास्ट MRI क्यों करवाओगे? इसका क्या मकसद है? मैडम, टू सी द एक्सटेंट ऑफ डिजीज एंड सर्जरी पे भी देख सकते हो, वो तो आप जब पेशेंट को ओपन करोगे, सर्जरी कर रहे होगे, तो फिर तो आपने करना ही है, उसमें देख सकते हो। Is it justified? Madam, it will help in staging of the disease before surgery. And presence of lymph nodes, omental caking, and actually, and whether it is operable or not. बेसिकली नेकेड आई पेरेंट्स बाद दफा आपको बहुत जो है वो एक कंफर्म्ड चीज नहीं बता रही होती। समटाइम्स इवन बिनाइन ट्यूमर्स में बी क्वाइट एग्रेसिव लुकिंग, और बाद दफा मेलिग्नेंट ट्यूमर भी जो है वो उनकी इतनी एग्रेसिव लुक नहीं होती। तो इसमें पेशेंट की हमने सारी प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग उस हिसाब से करनी है। हमने एक्सटेंट ऑफ सर्जरी करने से पहले डिफाइन करनी है
हमने उसका जो ऑनवर्ड प्लान ऑफ मैनेजमेंट है वो सारा डिसाइड करके फिर अटेंडेंट्स को काउंसिल करना है उसके हिसाब से। तो बेसिकली हमारी एक्सटेंट ऑफ सर्जरी, हमने स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है, सिंपल लेप्रोटमी करनी है, सिंपल THBSO करना है, या हमने बाकी टिश्यू सैंपलिंग लेनी है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर आपने ये सारा कुछ करना है तो व्हाई नॉट टू डू इट विदाउट डूइंग दिस, आप वैसे ही सारा कुछ टिश्यू बायोप्सी ले लो। लेकिन अगर ये ओवेरियन मैलिग्नेंसी है तो इसमें तो ओमेंटेक्टमी भी फिर करनी बनती है। ओमेंटेक्टमी आप रूटीन में तो नहीं कर रहे होते, आप ज्यादा से ज्यादा ओमेंटल सैंपलिंग लेते हो, पेरिटोनियल फ्लूइड एस्पिरेशन, पेरिटोनियल फ्लूइड अगर है तो एस्पिरेट करोगे, वरना उसकी पेरिटोनियल वॉशिंग्स ले लोगे, और देन यू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ TH and BSO। वो तो डेफिनेटली करना ही करना है, इन एनी केस बिनाइन है या मिलिग्नेंट है, तो दोनों सूरतों में आप करोगे। और दूसरी चीज ये कि इसमें अब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग वाली इसकी प्रेजेंटेशन है, हाउ यू विल लिंक दिस प्रॉब्लम विद दिस एडनेक्सल मैस, और इसका आपकी मैनेजमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? मैडम maybe Suppose this is endometrial thickness was 4 या 5 mm, 4 to 5 mm वो दे देते हैं। then madam we will do endometrial sampling to rule out endometrial से आपको क्या पता चलेगा? ठीक है, एंडोमेट्रियल CA है या नहीं है, और अगर एंडोमेट्रियल CA हुआ तो उससे आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट जो आप अभी करने जा रहे हो उसमें क्या एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगी, कोई फर्क पड़ेगा आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट में? जी मैडम, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट फर्दर मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियल CA ही आ जाता है, सपोज ये एंडोमेट्रियल CA ही आ जाता है, यू आर ऑलरेडी प्लानिंग लेप्रोटमी फॉर हर एडनेक्सल मैस, तो ये जो एंडोमेट्रियल CA इसकी एंडोमेट्रियल हिस्टोपैथोलॉजी पे आ गया, तो उससे आपकी एक्सटेंट ऑफ सर्जरी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं मैडम, पोस्ट ऑपरेटिवली जो है, पोस्ट ऑपरेटिव बेटा हम सारा, हम तो हिस्टोपैथोलॉजी तो हमें पता चल ही जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजी के लिए हम पूरा सैंपल भेज रहे हैं, यूट्रस भी भेज रहे हैं, दोनों तरफ की ओवरीज भेज रहे हैं, और इसके अलावा ये सारा जो है पूरा मैस वो भी जाएगा, सो दैट विल बी अ कंफर्म्ड डायग्नोसिस। ये जितनी इमेजिंग स्टडीज हैं, ट्यूमर मार्कर्स हैं या अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स हैं, ये हमें नेचर ऑफ मैस, हमें सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैस बता रहे हैं, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट नेचर ऑफ मैस तो नहीं बता रहे। तो जब ये कंफर्म हो के आ जाएगा, हमने इसकी जो बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव इसको जो भी हमने थेरेपी देनी है, सपोज शी टर्न्स आउट टू बी अ केस ऑफ मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर्स या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी, तो हमने पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो भी हमने डिसाइड करना है वो तो हिस्टोपैथोलॉजी पे भी डिसाइड करना है। तो basically in the presence of this mass, when we are already planning for minimum for TH and BSO, जिसमें सारा रिमूवल ऑफ मैस भी होगा, सपोज इन केस के ये कंट्रास्ट MRI भी हमें यही रिपोर्ट दे देता है, ठीक है, कंट्रास्ट MRI ने भी हमें यही रिपोर्ट दे दी, उसने अगरचे उसने सारा हमें क्लियरली बताना होगा, तो फिर भी जो है वो हमने मिनिमम इसमें TH BSO करनी ही है, considering the age of the patient and her symptoms और उसकी size and nature of the mass, ठीक है, ये हमारी एक मिनिमम सर्जरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्ज किया ये बाद में आ जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर के तौर पे, CA 1 to 5 तो इसका 15 था, और इसका RMI अगर हम सारी रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की यही एज इट इज कर लें तो वो 45 ही बनता है, तो 45 में तो बहुत कम चांसेस है मैलिग्नेंसी के, बट स्टिल देयर आर 20% चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी। ये रूल आउट तो नहीं करता RMI के ये जरूरी मैलिग्नेंसी है या बिनाइन है, ये तो एक स्कोरिंग सिस्टम है जो हमें एक प्रिडिक्शन देता है कि यस दिस केस में बी अ मैलिग्नेंट मैस और दिस केस में बी अ बिनाइन, उसमें वो प्रोबेबिलिटीज हमें देता है, नॉट द कंफर्म डायग्नोसिस। तो कंफर्म तो होगा ही हिस्टोपैथोलॉजी के बाद आफ्टर डूइंग लेप्रोटमी एंड द रिमूवल ऑफ मैस। तो इसमें देयर इज नो हार्म टू टेक द पेरिटोनियल वॉशिंग्स एंड अ लिटिल पीस ऑफ ओमेंटम,
अब अगर फर्ज किया आपने, अब बेसिकली बहुत सारी चीजें जो हमने प्री ऑपरेटिवली डिसाइड की होती हैं, यानी अगर हम इस सारे सिनेरियो को एज इट इज लें, तो ये हमें बेस्ड ऑन RMI, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ, अब इसमें साइज बहुत वो है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइज इसका 11 × 10.5 है, और पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स में इस साइज का जो मैस है वो उसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो प्री मेनोपॉजल एज में है उसमें तो चूंकि ओवेरियन एक्टिविटीज ऑन गोइंग, तो उसमें इस तरह की सिस्ट बन जाना, उसमें बहुत सारी एंडोमेट्रोसिस के भी बहुत सारे उसमें केसेस हैं जो हो सकते हैं, इवन हेमरेजिक सिस्ट भी हो सकती हैं, तो वहां पे थोड़े से चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट इन द पोस्ट मेनोपॉजल एज। तो इस वजह से हमने इसको चाहे CA 1 to 515 भी आया, चाहे RMI 45 ही आ गया, जो कि मेलिग्नेंसी की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी शो नहीं कर रहा, फिर भी हम इसमें पेरिटोनियल वॉशिंग्स लेने में और ओमेंटल बायोप्सी लेने में कोई हार्म नहीं है। बाय दैट यू विल प्ले मोर सेफ, क्योंकि इसमें फिर सपोज इट टर्न्स आउट टू बी अ मेलिग्नेंट ट्यूमर later on histopathology, at least you have taken biopsy from the other areas, minimum of omentum and peritoneal washings, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सटेंट ऑफ डिजीज क्या है, एंड देन यू विल कंप्लीट द अदर प्रोसेस ऑफ नोइंग द मेटास्टेसिस। LFTs RFTs तो आपने पहले ही करवा दिए, लेकिन बाकी जो उनके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ये तो फंक्शनल को शो करेगा, वो हम फिर बाकी चीजों से भी कर सकते हैं, लाइक CT स्कैन, लाइक PET स्कैन, वो हमें पूरी बॉडी में जो मेटास्टेसिस है वो सारे बताता है, बट दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज, क्योंकि ये सर्जिकल स्टेजिंग होती है, बोथ ओवेरियन या यूट्राइन, दोनों की सर्जिकल स्टेजिंग होती है। तो ये मैडम ये पूछना था कि MRI इसमें ज्यादा क्यों रिलायबल है देन CT स्कैन? बेसिकली जब आपने एक मैस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता है, क्योंकि वो टिश्यू डिफरेंशिएशन ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, तो उसमें MRI जो है वो ज्यादा, अनलेस देयर इज सम कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर डूइंग MRI की भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, तो इस वजह से अगर MRI करने में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो सिर्फ अगर आपने, जैसे अगर ये यूट्राइन मैस भी होता तो भी MRI ज्यादा बेहतर होता। अगर ये डेफिनेटली CT भी हमें किसी हद तक ये इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन CT ज्यादा कंक्लूसिव होता है फॉर नोइंग द मेटास्टेसिस, लाइक लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हैं या कोई और डिस्टेंट मेटास्टेसिस हैं, जैसे लिवर के, स्प्लीन के या किडनीज वगैरह में इधर उधर, तो वो सारे हमें CT स्कैन से ज्यादा बेहतर पता चल जाते हैं। और MRI से जो डिफरेंट टिश्यू प्लेन्स हैं उनकी डिफरेंशिएशन हमें ज्यादा बेहतर पता चलती है। तो जब हमने उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है उस मैस की, तो हमें ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा MRI पे। अब जाहिर है MRI हर जगह अवेलेबल नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी, और वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से है। एंड द अदर ऑल्टरनेटिव इज CT स्कैन। CT स्कैन में रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट विद द MRI। बस यूं समझ लो कि जैसे 100 एक्सरे में एक्सपोजर होता है CT, उतना ही CT स्कैन में होता है। इसी वजह से हम CT स्कैन अगर एक दफा करवाएं तो दूसरी दफा करवाने में कम से कम 6 महीने का टाइम लेना चाहिए, और अनलेस कोई बहुत ऐसी क्रूशियल रीजन हो जिसमें हमें जल्दी रिपीट करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर फिर आप बेस करोगे, ठीक है? तो ये है सारा। तो इसमें अब आपकी बेसिकली अब हमने इस सिनेरियो को लिमिट कर दिया कि MRI पे भी आपकी यही पिक्चर आ जाती है, CA 1 to 5 ये हो गया, RMI ये हो गया। तो अब आपकी मैनेजमेंट क्या होगी? अब मैनेजमेंट की किस तरफ ले जानी है वो बाद दफा अमूमन कैंडिडेट खुद भी गाइड कर रहा होता है। यानी अगर वो कैंडिडेट ये कहे कि नहीं ये तो मुझे मेलिग्नेंट ही लग रहा है, इसमें डेब्रिनस कंटेंट जो है दैट इज क्वाइट सस्पिशियस इन नेचर के, ये अमूमन एक सिंपल सिस्ट में तो डेब्रिनस फ्लूइड नहीं होता, डीजेनरेटिंग टिश्यू भी डेब्रिनस फ्लूइड जैसी ही अपीयरेंस देता है, so that is suspicious, because but as I don't know I don't know the nature of mass on this, so MRI, अगर MRI भी अवेलेबल नहीं है या इवन CT भी अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द लेप्रोटमी। लेप्रोटमी तो डिसाइडेड है ही है, क्योंकि इसका साइज और उसकी नेचर मैस की ऐसी है, तो उसमें आपने फिर लेप्रोटमी तो करनी ही करनी है। अब लेप्रोटमी के टाइम पे बाज़ दफा आपको यू कैन बी पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन
कि लेप्रोटमी पे आपको ये शक्ल नजर आ जाती है ओवेरियन ट्यूमर की, तो उसके हिसाब से भी आपने इंट्राऑपरेटिव क्या फाइंडिंग्स हैं जो सजेस्ट करेंगी कि ये मेलिग्नेंट है, ये बिनाइन नहीं है, वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टेप्स ऑफ स्टेजिंग लेप्रोटमी क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अब जैसे सपोज ये प्रीवियस 2 सेक्शंस हैं, सो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी भी है, तो इसमें एडहेरियंस और ये सारी, अगर फर्ज किया ये कोई क्रॉनिक हेमरेजिक सिस्ट है जिसकी वजह से इसकी सारी एडहेरियंस बन गई, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? ठीक है ना, कि बहुत सारी फिर सिचुएशन उसमें निकल सकती हैं जो एग्जामिनर अपने कंफर्ट के या कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे क्वेश्चन आपको उस डायरेक्शन में ले जा सकता है, बट वी विल कीप इट लिमिटेड टू द एक्चुअल सिनेरियो ऑफ एन ओवेरियन सिस्ट, जिसकी नेचर इस पे ये है और बाकी सीए और एमआरआई पे की रिपोर्ट्स ये है, तो उसमें आपकी मैनेजमेंट ऑफ ऑनवर्ड क्या होगी? जी, madam, first of all, I will counsel my patient that she has an ovarian mass, which may be most probably malignant, but final diagnosis will depend upon the histopathology report. I will involve the multidisciplinary team involving the surgeons and physician and me as an gynecologist. I will optimize her health as she has high blood pressure and take the anesthesia fitness. And my aim of management is to do her staging laparotomy, for which I will consult the patient about the risks of the anesthesia, intraoperative, postoperative complications, and need of the histopathology report, importance of the histopathology report, and depending upon the histopathology report, further follow up and 5-year survival rate and prognosis of the disease. And then I will, after pre-operative and pre-anesthetic evaluation, pre-operative preparation, I will do her gut preparation, and then I will put her on the list for staging laparotomy. I will shift the patient to the operation theater, and after aseptic measure, I will do the midline incision, and will check the. I will take the peritoneal washings, and then I will observe the mass. After opening the abdomen, what will be your first step to do? Madam, first I will see the origin of the mass, its characteristics, and सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हो जब आप पेरिटोनियल कैविटी को ओपन करते हैं? first of all, peritoneal washings. पेरिटोनियल वॉशिंग सबसे पहले आप लेते हैं। सपोज देयर इज नो पेरिटोनियल फ्लूइड, तो फिर आप कैसे वॉशिंग लोगे? Then I will I will 100 ml normal saline, and then I will take the peritoneal washings. ठीक है, Then I will see the original mass, its characteristics, whether unilateral, bilateral, and status of the uterus, and then I will do the whole survey of the abdomen. Will check the ascending colon, transverse colon, descending colon, and inspect and palpate the undersurface of diaphragm, splenic flexure, and lymph nodes. And then I will do the total abdominal debulking surgery, total abdominal hysterectomy, and bilateral salpingo-oophorectomy. And then I will, if there is lymph node seen with the naked eye, then I will take the sampling from the lymph nodes, and then आप इसमें अब देखो, अब स्टेजिंग लेप्रोटमी का तो लफ्ज आपने बोल दिया इसमें। अब यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि CA125 नॉर्मल के साथ RMI 45 के साथ स्टेजिंग लेप्रोटमी के स्टेप्स और उसके अब टेकिंग लिम्फ नोड बायोप्सी भी एक एरिया ऑफ डिस्कशन है कि क्या इस सिनेरियो के साथ, जबकि आपको लग रहा है कि ये ज्यादा इसमें चांसेस हैं कि शायद ये बिनाइन ही हो, तो लिम्फ नोड बायोप्सी लेना क्या इसमें जस्टिफाइबल होगा? Madam, lymph node biopsy can only be taken if they are visible by naked eye and more than 1 centimeter. क्या ये विजिबल होती हैं? Madam, they are only visible if they are more than 1 centimeter. नहीं, ये क्लिनिकली पैल्पेबल कब होती हैं?
when they are more than 2 centimeter in size. Okay. तो ये तब क्लिनिकली हम इसको अपने फिंगर से तब हम पल्पेट कर सकते हैं. एंड इन सच सिनेरियो जहां पे ये सारी प्रोबेबली देयर विल बी मच एडहेजन्स और ये सारा टिश्यू डिसेक्शन विल बी मच इंक्रीज्ड और उसमें मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है. तो उसमें और ख़ास तौर पे अगर आपने फ़र्ज़ किया MRI CT करवा ही लिया फॉर एनी इस मकसद के लिए अगर अवेलेबल था, तो उसमें तो आपको लिम्फ नोड का पता चल जाएगा. इवन लिम्फ नोड ऑन CT स्कैन अगर ये 1 सेंटीमीटर से कम हो तो बाद दफ़ा वो भी डिटेक्ट नहीं होती. तो इसलिए आप लिम्फ नोड बायोप्सी की बात इससे ज़्यादा जो हमें बिनाइन आपके जो सिनेरियो आपने सारा बताया CA 1 to 5 और ये सब चीज़ें उसके बेस पे तो ये बिनाइन की नेचर में ज्यादा चला जाता है. जाहिर है इसमें हमने तो उसकी एज के हिसाब से, साइज के हिसाब से और फिर जो मैस की नेचर थी उसके हिसाब से हमने इसको ज्यादा एक्सटेंसिव सर्जरी की तरफ ले गए. लेकिन स्टेजिंग लेप्रोटमी में टेकिंग लिम्फ नोड बायोप्सी इन अपेरेंटली एन ओवेरियन मैलिग्नेंसी, तो वो क्योंकि देखो लिम्फेडेनेक्टमी का या टेकिंग लिम्फ नोड बायोप्सी का रोल जो है वो थोड़ा सा डिबेटेबल होता है कि इसमें आपको डेफिनेटली सर्जन को इन्वॉल्व करना पड़ता है. ऐसे डिफिकल्ट केसेस में जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो, मतलब ये मुझे लगता है ये जस्ट लाइक फ्रोजन पेल्विस वाली बात होगी जो कि कल्डी सैक तक भी जा रही है, ये सारी एडहेजन्स ही होंगी, वेरी डिफिकल्ट. बट सपोज दीज आर क्लिनिकली पैल्पेबल, देन विच लिम्फ नोड बायोप्सी यू विल टेक. इसमें कौन सी लिम्फ नोड हैं जो सबसे पहले इन्वॉल्व होती हैं ओवेरियन में? मैडम पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स. कौन सी? पेरिटोनियम तो बहुत बड़ी चीज है. तो कौन सी लिम्फ नोड है जो इसमें करते हैं? लिम्फ नोड्स की अगर आप सब सेट देखो तो इंगाइनल हैं, सर्वाइकल हैं, बाकी पैरा एओर्टिक हैं. तो कौन सी वाली लिम्फ नोड लोगे ज्यादा इसमें मेटास्टेसिस पहले जाने के चांसेस होते हैं? यू मस्ट नो द लिम्फेटिक स्प्रेड. ओवरीज का कहाँ से जो है वो आता है ब्लड सप्लाई? मैडम ओवेरियन आर्टरीज. ओवेरियन आर्टरी कहाँ से स्टिमुलेट करती है? पैराएओर्टिक लिम्फ नोड्स. तो उस सूरत में फिर पैराएओर्टिक लिम्फ नोड्स आप जो है उसको देखोगे और उसको आप पल्पेट भी बेसिकली करते हो. पल्पेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टेजिंग लेप्रोटमी कि आप उसको पल्पेट करते हो अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम, बी, लिवर, स्प्लीन, ये सारी चीजें आप पल्पेट करते हो. और लेकिन ये है कि अगर बहुत ये हों, पल्पेबल हों, तो फिर पैरा एओर्टिक और पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स की बायोप्सी लेना आसान काम नहीं होता. ठीक है, ये बिल्कुल एओर्टा के दाएं बाएं होती हैं. तो इस वजह से इस पे हम खास तौर पे एक ऐसे केस में अगर ये क्लियरली मैलिग्नेंट होती, यानी इसका RMI भी होता, फर्ज किया 300-400 होता और CA 1 to 5 भी रेज्ड होता, अल्ट्रासाउंड पे कुछ और फीचर्स ऐड हो जाती हैं, तो आप डेफिनेटली लेते अगर इसमें जो है वो उस पे हमारे पास सर्जन अवेलेबल हो और ये पैल्पेबल हो. एंड यू मस्ट नो कि स्टेज 1 डिजीज में कितने % लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती हैं, स्टेज 2 में कितने % केसेस में लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती हैं, एंड बियॉन्ड स्टेज 3 and 4. तो ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ओवेरियन मैलिग्नेंसी इज नॉट दैट अनकॉमन नाउअडेज. तो वेरी मच यू कैन गेट अ पेशेंट विद एन ओवेरियन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर या बिनाइन, दोनों चीजें हो सकती हैं. इसलिए इसका जो मेटास्टेसिस का जो रूट्स होता है ना, रूट्स ऑफ स्प्रेड, और उनको जो लिम्फ नोड्स ड्रेन कर रही होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए. प्रोग्नोसिस भी पता होना चाहिए, 5 ईयर सर्वाइवल भी पता होना चाहिए इन क्लियरली मैलिग्नेंट केसेस. और उसमें कीमोथेरेपी कौन सी ज्यादातर जो हम देते हैं, नॉट द डिटेल्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड नॉट द डिटेल्स ऑफ रेडियोथेरेपी, लेकिन सिर्फ एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि आजकल हम कौन सी कीमोथेरेपी देते हैं. पैक्लीटेक्सेल देते हैं, बट हाँ जी, उसमें बहुत सारी हैं जो टाइम टू टाइम बीच में निकलती जाती हैं. तो बहरहाल ये सारी चीजें तो हैं. अब इसमें नाउ कंसिडरिंग अगेन कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर केस, इसमें हमने मिड लाइन खोला, पेरिटोनियल वॉशिंग स्लीव, फिर हमने एक ओवरऑल सर्वे किया, नेकेड आई अपीयरेंस उसकी देखी, मैस की लोकेशन, उसका साइज, उसकी अपीयरेंस,
कॉन्ट्रीलैटरल ओवरी को देखा वो कैसी है, क्योंकि बायलैटरलिटी विल इंडिकेट सम मेलिग्नेंसी पोटेंशियल उसमें ज्यादा है। फिर यूट्रस और सारा एडहेजन्स और उसकी सर्जिकल डिफिकल्टीज को हमने असेस किया, और उसके बाद फिर हमने ओमेंटम को भी देखा। बाज दफा अमूमन अब मेलिग्नेंसी का केसेस हो या क्रोनिक हेमरेज का केस हो या इन्फेक्शन का केस हो, इन सब में ओमेंटल केक बनने के बहुत चांसेस होते हैं। सो मेंटल केक इज नॉट ऑलवेज मार्कर फॉर मेलिग्नेंसी, ये और भी कंडीशंस में हो सकता है। तो इसलिए इसमें हमने ये सारा कुछ देखे, देन वी विल प्रोसीड फॉर द सर्जरी, ठीक है। और सर्जरी में जो है वो हमारा जो एक टारगेट है वो डूइंग टीएच एंड बीएस अलोंग विद द रिमूवल ऑफ मैस, होल मैस, तो वो हमने सारा अचीव करना है। अब इसमें जो बाकी ये चीज है कि इसमें बेसिकली अगर ये क्लिनिकली जो है वो मोबिलिटी इसकी रिस्ट्रिक्टेड थी, तो ये पेशेंट ऐसा है जिसमें एडहेरेंस और इसमें लैटरल पेल्विक वॉल में इस मैस के जाने के चांसेस होते हैं। व्हाट डिफिकल्टीज एंड व्हाट कॉम्प्लिकेशंस यू कैन एंटिसिपेट ड्यूरिंग सर्जरी? जी मैडम, सर्जिकल डिफिकल्टी एंड इंटरऑपरेटिव damage to the what? Madam, damage to the surrounding viscera like bladder, bowel and rectum, bowel bladder damage, and madam, intraoperative blood loss. इसमें बेसिकली ये बावल, ब्लैडर और ये रेक्टम वगैरह ये तो चलो हो गया, वो कल्वी सैक तक जा रहा है, उसमें ज़ाहिर वो तो होंगी, रीजन्स भी होंगी। लेकिन इसमें और क्या स्ट्रक्चर होता है जो बड़ा वल्नरेबल होता है? मैडम, यूरेटर। यूरेटर तो खास तौर पे ये जो अगर खास तौर पे फिक्स मैस हो, फिक्स मैस का मतलब एक ऐसा मैस जो कि 18 वीक तक का है और वो फिक्स है। फिक्स का मतलब ये कि वो मोबाइल नहीं है, तो वो परसिस्टेंटली प्रेशर डाल रहा होता है यूरेटर के ऊपर। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, इसलिए इसमें एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड ही करवाना चाहिए कि उसमें बाकी आप लिवर, स्प्लीन, किडनीज को भी देख लो और उसको यूरेटर और ब्लैडर को भी देख लो, ठीक है। एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये तो हमने देखना है इसमें, सपोज देयर इज नो हाइड्रोनेफ्रोसिस, नो हाइड्रोयूरेटर, can you do something to safeguard the ureters during surgery because this is anticipated to be a difficult surgery? जी मैडम, प्री ऑपरेटिव यूरिटेरिक स्टंटिंग। तो वो आप फिर करवाओगे कि नहीं करवाओगे, वो तो आपने उसका जिक्र नहीं किया। जी मैडम, आई फॉरगॉट, इट शुड बी, ठीक है। इस नॉट एज अ रूटीन पार्ट, क्योंकि स्टेंटिंग इटसेल्फ कैन बी ट्रॉमेटिक टू द यूरेटर्स, लेकिन सिर्फ उन केसेस में जो कि बेसिकली जो लैटरल पेल्विक वॉल तक जा रहे हैं। अब ये दिस यू नो बेटर कि उसमें एग्जामिनेशन पे ऐसी फाइंडिंग्स थी या नहीं थी, लेकिन जो भी कोई ऐसा मैस हो जो कि पेल्विस से अराइज करता हुआ जो एब्डोमेन में गया और उसके बाद लैटरल पेल्विक वॉल तक उसकी एक्सटेंट है, दैट इज सपोज टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द यूरेटर्स। तो उसमें उसके सेफ गार्ड के लिए, अब क्योंकि देखो इसमें खास तौर पे जो ग्रेड फॉर एंडोमेट्रोसिस भी होता है इवन, और उन केसेस में भी वहां भी यूरेटेरिक स्टेंटिंग इसलिए डालते हैं, वो करते हैं कि उसमें ड्यूरिंग सर्जरी, अब सर्जरी करने के बाद उसको अगर फर्ज किया बुलाओगे यूरेटर डैमेज करने के बाद, तो यूरेटर डैमेज होने से पहले उसका क्यों ना प्रोफाइलैक्सिस कर लिया जाए। तो उसमें जो है वो हम यूरेटर्स को फील कर सकते हैं एंड देन वी स्टे अवे फ्रॉम द यूरेटर्स, क्योंकि यूरेटर डैमेज होने के बाद फिर उसको सर्जन को बुलाना, फिर उसका रिपेयर कराना, वो उसकी अपनी मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा एडअप हो जाती है। तो कम से कम उस सूरत में अगर यूरेटेरिक स्टेंटिंग होगी इन केसेस ऑफ डिफिकल्ट सर्जरी, तो उस सूरत में ऑल द टाइम वी कैन फील फॉर द यूरेटर्स ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट सर्जरी, और हम उससे परे परे रह के अपनी सर्जरी कंप्लीट कर रहे होते हैं। और अगर आपने जैसे बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट केसेस होते हैं जिसमें पेल्विक एक्सेंट्रेशन वाली चीज हो, वहां पे तो फिर ऑलरेडी यूरेटर्स को जो है वो मोबिलाइज करके उसको अवे किया जाता है और उसमें यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये ऐसा केस नहीं है जिसमें हम यूरेटर की मोबिलाइजेशन जो है वो उसको हम प्रोसीड कर रहे हो। वी आर सिंपली डूइंग द प्रोसीजर जिसमें हमने यूरेटर्स का भी ख्याल रखना है। तो दिस वे वी कैन डू दिस, ठीक है। तो ये वाली चीज आप बोल सकते हो एज अ पॉसिबल स्ट्रेटजी।
चलो जी, अब आगे आपने इसका ये कर ली, सर्जरी कर ली, ठीक है। इसमें हम कोई डिफिकल्टी अभी इसमें नहीं डाल रहे कि यू हैव कंप्लीटेड विद द सर्जरी। नाउ आफ्टर हिस्टोपैथोलॉजी, जब इसमें इसकी हिस्टोपैथोलॉजी आती है तो वो आ जाती है सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। जी। Then I will involve the I will counsel the patient that she has a malignant ovarian mass and it needs further treatment in the form of chemoradiation. I will involve the tumor board and will discuss my case with the tumor board, and then I will refer the patient What for a tumor board is meant for and what they and how they help to resolve the case. ट्यूमर बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट सर्जरी से पहले होनी चाहिए या बाद में? नाउ दिस इज बेसिकली आई थिंक द फंक्शन ऑफ एन ऑन्कोलॉजिस्ट, क्योंकि इसमें जो है वो आपने बेसिकली तो वो निकाल लिया, ट्यूमर ही निकाल लिया जिसकी हिस्टोपैथोलॉजी आपको मिल गई। और कीमोथेरेपी से पहले तो आपको डेफिनेटली टिश्यू टाइप की बहुत जरूरत होती है क्योंकि उसके मुताबिक आप कीमोथेरेपी देते हैं। दैट ऑल थिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड। तो अब इसमें ट्यूमर बोर्ड की क्या जरूरत होगी? मैडम बिकॉज मैं बेटा जरा एक जरूरी फोन सुन लूं, आप उतनी देर में सोचो। जी। देर गई।